Hello students, welcome to our YouTube platform. From this class, we will start chapter similarity from geometry. So in this class, we will complete this chapter similarity in 8 classes, in which we will cover theorems, exercises, solve problems, everything. And this is from your ICSE board class 10. Now, apart from this chapter, for those who are new to this platform, we have also covered chapter circle in 8 classes, chapter number 17, circle. So these two chapters, circle and geometry, are from module geometry from your maths textbook, Selena publication. So circle is done almost. I will give you the links of all the videos in the description box. So today onwards, we will study similarity. So let's start. Equality and similarity of geometrical shapes. In our previous class, class 9, we studied about equality of two triangles. How to make two triangles equal. If I have been given two triangles, triangle ABC and triangle PQR. So by the test of equality like SAS, SSS, ASA, AAS, right angle hypotenuse, I can say whether these two triangles are equal or not. And if two triangles are equal, it means that their corresponding angles and sides will be also equal subsequently. So we dealt with equality of two triangles. So in this chapter, we will deal with similarity of two triangles, right? So what is equality and what is similarity? So equality of two figures and similarity of two geometrical figures. Geometrical figures are generally circle, square, triangle, rectangle, parallelogram, trapezium, right? But we will only consider triangles here. So similarity of two triangles. So to understand this, consider two tennis ball, right? This is tennis ball 1 and this is tennis ball 2. These two tennis ball are of the same size and same shape. Size is same and the shape is same, which is sphere. So I can say these two tennis ball are equal as well as similar. But if I take one tennis ball here, one tennis ball and second one is a football, right? This is tennis ball and this is football. Here I can say the shape of two balls is equal but the size is not. So here this tennis ball and football are similar but they are not equal. Same is the case for triangle, right? So if consider these two triangle, if I name it to be triangle A, B, C, triangle P, Q, R, A, B, C, triangle P, Q, and R. So in the left hand side, यानी कि equality of two triangles में, the two triangles are equal. It means the measurement of side AB is exactly equal to side PQ, AC equal to PR, BC equal to QR, AB equal to PQ, AC equal to PR, and BC equal to QR. Corresponding angles. So corresponding angle of AB, right? Angle opposite to AB is C. So this C and AB is equal to PQ. So corresponding angle of C will be the angle opposite to side PQ, यानी कि R. So Q will be equal, C will be equal to R, then B will be equal to Q, and A will be equal to P. So by the test of SSS, AAS, SAS, we can say these two triangles are equal. But now in the right hand side, two triangles are not equal, but they are similar, right? So triangle ABC and triangle PQR are similar. Now, what is the condition for two triangles to be similar is what we are going to study in this chapter, right? Like we have four tests for two triangles to be equal. Similarly, for two triangles to be similar, we also have four tests, right? तो वो हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे. So this is equality and this is similarity. Similarity means shape मेरा same होना चाहिए, side can be
साइज साइड का सेम होना जरूरी नहीं है. कंसिडर अदर फिगर स्क्वायर. तो यहाँ पे स्क्वायर ए एंड स्क्वायर बी, राइट, दिस टू आर इक्वल एंड सिमिलर. But here the square C and square D are similar, but they are not equal. ट्राइंगल्स में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, यानी कि तीनों साइड हो गई, तीनों एंगल्स हो गए, राइट. तो मतलब दे आर द बेसिस फॉर इफ आई वांट टू मेक अ ट्राइंगल. बट स्क्वायर में एक ही प्रॉपर्टी होती है कि साइड, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल इज 90. तो यहाँ पे ए और बी में जो साइड है वो सेम है, सी और डी में साइड डिफरेंट है, राइट. तो ए एंड बी आर इक्वल एज वेल एज सिमिलर. C and D are similar but not equal. So we can say कि equal geometrical shapes are similar, but similar geometrical shapes are not necessarily to be equal. So this is first, take note of it. Now in previous slide हमारे पास दो ट्राइंगल्स थे, राइट, ट्राइंगल ABC and triangle PQR. Now how can I say that these two triangles are similar? यानी कि दो ट्राइंगल्स, अभी जैसे भी कि दो ट्राइंगल्स मेरे इक्वल होते हैं, इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, राइट. सो इन दैट सेंस इफ आई वांट टू से when my two triangles are similar, right, so what is the condition? In equilateral triangles corresponding sides are equal and corresponding angles are equal. तो उसी तरीके से सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है, मतलब मानो कि मेरे दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड हाउ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर रिलेटेड. तो फर्स्ट बीइंग करस्पॉन्डिंग sides and second being corresponding angles. So in similar triangles corresponding angles are equal, right, corresponding angles are equal. So condition is if यहाँ पे if triangle ABC is similar to triangle PQR. One more thing, this is the symbol by which we represent similarity. So triangle ABC is similar to triangle PQR. So this is the symbol of similarity. Now if these two triangles are similar, it means angle B is equal to angle Q, angle A is equal to angle P, and angle Q is equal to angle R. These corresponding angles are equal. Corresponding angles and corresponding sides क्या होता है वो भी हम देखेंगे, बट फिलहाल इट इज वेरी मच एविडेंट फ्रॉम द डायग्राम कि B जो है वो मेरा Q के इक्वल है, C जो है वो मेरा R के इक्वल है, A जो है वो मेरा P के इक्वल है. कब? जब मुझे दिया है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. सो एंगल का पार्ट्स मेरा हो गया यहाँ पे. नाउ कमिंग टू साइड्स, इट इज वेरी मच क्लियर कि साइड्स जो है वो मेरी इक्वल है ही नहीं. ए बी जो है वो मेरी पी क्यू से बड़ी है, बी सी इज ग्रेटर देन क्यू आर एंड ए सी इज ग्रेटर देन पी आर. सो दे विल नॉट बी इक्वल. सो द रिलेशन इज कि साइड्स आर proportional. Proportional means AB upon PQ is equal to BC upon QR equal to AC upon PR. Sorry, AC upon PR. तो in similar triangles corresponding angles are equal, right? यहाँ पे B जो होगा वो मेरा C से इक्वल होगा, Q से इक्वल होगा, सॉरी, C मेरा R से इक्वल होगा एंड A मेरा P से इक्वल होगा. एंड फॉर sides are in proportional. I mean sides are in constant ratio. I mean AB upon PQ is equal to BC upon QR equal to AC upon PR. So when two triangles are similar, their corresponding sides are proportional and their corresponding angles are equal.
नाउ द टर्म्स करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो साइड्स तो पता है हमें क्या होता है, साइड इज वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, बट व्हाट इज करस्पॉन्डिंग साइड? तो यहाँ पे फॉर ए बी एंड पी इट इज गिवन द ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR, right? Triangle ABC is similar to triangle PQR. So what are the corresponding sides? It is clear कि AB जो है मेरा, right? AB PQ के बराबर होगा, इक्वल नहीं होगा बट करस्पॉन्डिंग। BC जो होगा वो मेरा QR से प्रोपोर्शनल होगा एंड AC जो होगा वो मेरा PR से होगा, राइट? सो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। मतलब ABC एंड PQR यहाँ पे मेरा सिमिलर है, राइट? तो इट मीन्स कि एंगल A जो होगा वो मेरा एंगल P से इक्वल होगा। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, नाम पे जाना है। B जो होगा वो मेरा Q से इक्वल होगा, एंड C जो होगा वो मेरा R से इक्वल होगा, राइट? तो ये मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है इन टू सिमिलर ट्राइंगल्स। नाउ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर angle opposite to that size. Now for angle opposite to B, angle sides opposite to angle B is AC and side opposite to angle Q is PR. So AC upon PR is proportional. This is my first pair. Second pair, angle A. The side opposite to angle A is BC and side opposite to angle P is QR. So BC upon QR. In the third part, angle C, the side opposite to angle C is AB and the side opposite to angle R is PQ. So AB upon PQ. Now all these ratio, right? 1, 2 and 3, they are equal. AC upon PR is equals to BC upon QR is equals to AB upon PQ. So the important thing is कि यहाँ पे जो आपका नेम होगा, राइट? A triangle ABC is similar to triangle PQR. So this is the right format. I cannot say triangle ABC is similar to triangle PRQ या फिर triangle QPR. This is wrong. The naming is very much important. कि triangle ABC is similar to triangle PQR. It means कि A मेरा P से इक्वल होगा, B मेरा Q से इक्वल होगा and C मेरा R से इक्वल होगा. And after that we can say corresponding sides. So how to find corresponding sides? So sides opposite to equal angles are corresponding sides. तो AC upon PR equal to BC upon QR equal to AB upon PQ, right? ये कब था? जब हमें दिया था कि मेरे दो ट्राइंगल सिमिलर है और फिर हमने उसमें से करस्पॉन्डिंग साइड्स फाइंड की। नेक्स्ट स्लाइड में हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स फाइंड करेंगे। और तीसरा क्या आता है, एक था कि ट्राइंगल सिमिलर थे और करस्पॉन्डिंग साइड्स हमने फाइंड की। दूसरा होगा कि ट्राइंगल सिमिलर हो गए और हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स फाइंड करेंगे। एंड थर्ड विल बी कि हमें दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने होंगे और उसके बाद उसका नाम जो होगा वो लिखना होगा, राइट? उसे हम कहते हैं नेमिंग ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, राइट? तो वहां पे भी जो आप जिस तरीके से आप नाम देते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज इफ बाय मिस्टेक यहाँ पे मैंने ABC की जगह पे फर्स्ट में ही यहाँ पे PRQ लिख दिया होता, राइट? यहाँ पे मैंने PRQ लिख दिया होता तो ये पूरा का पूरा मेरा गलत हो जाता। तो ये था करस्पॉन्डिंग साइड्स, यू कैन नोट इट डाउन। नाउ मूविंग टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या थी हमारी? करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, वो थी हमारी करस्पॉन्डिंग साइड्स। नाउ कमिंग टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स,
the angles opposite to proportional sides. The angles opposite to proportional sides. तो यहाँ पे triangle ABC is similar to triangle PQR. We are taking it as a given. Now ABC and PQR मेरे similar है, तो नाम से, right, from the name of the triangle, how can we write proportional sides? From the name of the triangle, how can we write proportional side? So first I am writing AB, right? Now AB is here, right? AB is here, first and second place. Now first and second place in here is PQ, so AB upon PQ. Now I am writing BC, right? So BC is second and third. BC is second and third. This is first and second. So second and third in PQR is QR. And AC is first and third. First and third in PQR is P and R. So this way we can write the corresponding sides of similar triangles जब हमें नाम पता हो. Now angles. तो angles कौन से इक्वल हो गए? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि the angles opposite to proportional sides. तो AB के अपोजिट में कौन सा एंगल है? तो AB के अपोजिट में एंगल C है एंड PQ के अपोजिट में एंगल R है, राइट? तो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R. नाउ BC के अपोजिट में एंगल A है एंड QR के अपोजिट में एंगल P है, तो A इज इक्वल टू P एंड AC के अपोजिट में एंगल B है एंड PR के अपोजिट में एंगल Q है. So angle B equal to angle Q. So this was one way of writing corresponding angles in similar triangles जब आपको sides proportional है वो दिया हो. दूसरा आप ये कर सकते हो कि AB upon PQ यहाँ पे है, so what is missing? C. PQ है यहाँ पे, तो PQR में से कौन सा missing? R, तो C equal to R. BC upon QR, what is missing? A. QR में से P. AC upon PR, AC में से B missing है और PR में से Q missing है. So naming is very much important. So this was corresponding angles and corresponding sides, right? Now how to name two similar triangles with the help of angles. So triangle ABC is similar to triangle PQR, B equal to Q, C equal to R, A equal to P. वो सब हमने देखा. And how I was more focusing on naming is because this कि first triangle और first diagram जो हमारा है यहाँ पे ये वाला, इसमें आप easily लिख सकते हो कि triangle A B C is similar to triangle P Q R. यहाँ पे आप Q P R या फिर R P Q लिखने की मिस्टेक नहीं करोगे बिकॉज डायग्राम में से क्लियर कट दिख रहा है कि A जो है वो मेरा P से इक्वल है, B जो है वो मेरा Q से इक्वल है एंड C जो है वो मेरा R से इक्वल है. बट जब इस तरीके के डायग्राम आएंगे, राइट, तो इस तरीके के सेकंड कैटेगरी के, यदि इफ आई से हियर कि ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, then most of you will be confused because the shape of ABC is not equal to the shape of PQR, right? तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल्स है मेरे ABC एंड PQR वो मेरे सिमिलर है, राइट? दे आर सिमिलर बट दे आर नॉट लुकिंग सिमिलर. तो यहाँ पे नेमिंग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो यहाँ पे लिखते हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, right? If I say triangle ABC is similar to triangle PQR, जैसे कि हमने ऊपर लिखा, तो ये मेरा गलत हो जाएगा. ABC is not similar to triangle PQR. तो two triangles are similar, but the naming, the way we name ABC is not similar to PQR.
सो क्वेश्चन में हमें दिया होगा कि विच एंगल इज इक्वल टू विच एंगल, या फिर विच साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो इफ इट इज गिवन कि ए जो है मेरा वो मेरा आर से इक्वल है, इट इज गिवन राइट कि ए इज इक्वल टू आर, देन बी जो है वो मेरा पी से इक्वल है, एंड सी जो है मेरा वो मेरा क्यू से इक्वल है, राइट। सो यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल सी is equal to angle Q, and angle B is equal to angle P. So these three angles of two triangles are equal. So by the AAA test, ये दोनों similar होंगे, जो हम पढ़ेंगे कि टेस्ट क्या होती है, but these three angles are similar. तो ट्राइंगल जो है मेरा वो सिमिलर तो है, बट अभी नाम कैसे करें, क्योंकि ABC इक्वल टू PQR नहीं होगा। तो नेमिंग क्या होता है, फर्स्ट आप दो ट्राइंगल्स का सिंबल बना लो, फिर एक सिमिलरिटी की साइन ड्रॉ कर लो, फिर ABC एक साइड में लिख लो आप, अदरवाइज ABC नहीं तो फिर PQR लिख दो, राइट। सेम तरीके से फिर एक इसको इक्वल है R, BP एंड CQ। तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल RPQ, नॉट PQR, RPQ, राइट। और दूसरे तरीके से इफ नीचे मैंने PQR मैंने फर्स्ट लिखा है, तो P इज इक्वल टू B, Q इज इक्वल टू C एंड R इज इक्वल टू A। सो ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल BCA, राइट। दो में से कोई भी चलेगा, बट दिस वे वी शुड नेम द ट्राइंगल। ऐसा नहीं कि ABC इक्वल टू PQR, RPQ, जो मन में आया वो नहीं, जो प्रॉपर है वही। सो दिस इज हाउ टू नेम टू ट्राइंगल्स with the help of angles. Now, how to name two similar triangles with the help of sides. So consider these two triangles ABC and PQR. So if I want to name ABC and PQR, it is very much simple कि ABC है वो मेरा PQR से होगा, because A is similar to P, A is equal to P, angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, and angle C equal to angle R. So triangle ABC is similar to triangle PQR. यदि मुझे दिया हो कि A जो है वो मेरा P से इक्वल है, B जो है वो मेरा Q से इक्वल है, एंड C जो है वो मेरा R से इक्वल है, इफ मुझे ये दिया है, राइट, तो आई कैन इजीली राइट कि ABC सिमिलर टू PQR, और दिखता भी है। नाउ बट इन सेकेंड केस इट इज डन इन द प्रीवियस स्लाइड एज वेल। तो दो ट्राइंगल्स मेरे कब सिमिलर होते हैं, या तो उसके सारे के सारे एंगल्स इक्वल हो, या तो फिर सारे तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो। अपार्ट फ्रॉम दिस SAS टेस्ट भी होता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, बट दिस टू मतलब कि सारे एंगल्स इक्वल हो या फिर सारी साइड्स प्रोपोर्शनल हो। तो मेरे टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो दो ट्राइंगल्स जब मेरे सिमिलर होते हैं, राइट, तो उसकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे ABC इक्वल टू PQR, राइट, तो आई कैन से AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। बट व्हाट इफ मुझे सारे की सारी साइड्स है, राइट, वो मुझे प्रोपोर्शनल दी हो। यहाँ पे AB अपॉन RP इज इक्वल टू BC अपॉन PQ एंड AC अपॉन QR। ये मुझे दिया है, राइट, कि by this relation all these sides of triangles are related, right, proportional। अभी नीचे वाला जो डायग्राम है, राइट, वो दो ट्राइंगल सिमिलर है, वो दिखते नहीं है बट है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इन द सेकंड डायग्राम ये रिलेशन है, राइट, AB अपॉन RP इक्वल टू BC अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन QR। तभी मुझे लिखना है कि हाउ कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू विच ट्राइंगल, आई मीन PQR, RPQ, QPR, right? In the same way, triangle PQR is similar to which triangle? ABC, BCA, ACB, right? So उसके लिए यहाँ पे हम करेंगे कि AB is proportional to RP in diagram. AB is proportional to RP. So angle opposite to side AB is C, and angle opposite to side PR
इज क्यू, तो सी जो है वो मेरा क्यू से इक्वल होगा, राइट। यहाँ पे सी जो है वो मेरा क्यू से इक्वल होगा। फिर बी सी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज proportional to PQ. Angle opposite to BC is A and angle opposite to PQ is R. तो यहाँ पे A is related to R, तो भी A की जगह पे मैं R लिख लेता हूँ। A मेरा फर्स्ट है तो R मेरा फर्स्ट आएगा, C मेरा थर्ड है वो मेरा Q आएगा, तो R P Q, राइट। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तीसरी भी एक ट्रिक होती है कि भी AC है, राइट, यहाँ पे तो क्या नहीं है, यहाँ पे B नहीं है। यहाँ पे क्यू आर है तो क्या नहीं है, पी नहीं है, तो बी इज रिलेटेड टू पी, तो अभी पी क्यू आर है, राइट, तो पी जो है वो मेरा बी से इक्वल है, उसके बाद क्यू है वो मेरा सी से इक्वल है एंड आर है वो मेरा ए से इक्वल है। सो दिस वे हम दो सिमिलर ट्रायंगल्स के नाम लिखते हैं। अभी देखते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर टू ट्रायंगल्स टू बी सिमिलर। सो द फर्स्ट वन इज SAS टेस्ट। Consider two triangles, triangle ABC and triangle PQR. So to check whether these two triangles are similar or not, so AB, PQ, BC, QR and angle B and angle Q, जैसे कि हमारी इक्वालिटी में थी SAS टेस्ट, उसी तरीके से यहाँ पे ये टेस्ट होती है। उसमें फर्स्ट क्या होता है कि AB अपॉन PQ शुड बी इक्वल टू BC अपॉन QR। इक्वालिटी में क्या था कि AB शुड बी इक्वल टू PQ, BC शुड बी इक्वल टू QR। यहाँ पे वो एग्जैक्ट मेजरमेंट सेम होने की जरूरत नहीं है, देयर रेशियो शुड बी इक्वल। AB अपॉन PQ शुड बी इक्वल टू BC अपॉन QR, फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन इज कि द एंगल विथ दिस टू साइड, तो एंगल विथ दिस टू साइड्स आर मेकिंग, वन इज B एंड वन इज Q, ये दोनों मेरे सिमिलर होने चाहिए। दिस इज SAS टेस्ट। Then I can say triangle ABC is similar to triangle PQR, right? Second one is SAA or AAA test. In two triangles ABC and PQR, if angle B is equal to, let's say, angle R, angle C is equal to angle Q, and angle P is equal to angle A, angle A is equal to angle P। तो यहाँ पे तीन एंगल्स मेरे इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे इक्वल हो गए, बट हियर ABC इज नॉट सिमिलर टू PQR। तो हम लोग इसका नाम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल R एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। सो ट्रायंगल ABC is similar to triangle APBR and CQ, जो हमने अभी पिछले दो स्लाइड में देखा कि हाउ टू नेम टू ट्रायंगल्स, राइट। तो इस तरीके से ABC is similar to PQR। यहाँ पे क्या होता है कि इसको हम AA भी बोलते हैं और AAA भी बोलते हैं। यदि दो एंगल्स मेरे ट्रायंगल के सेम है, राइट, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी तीसरा जो मेरा एंगल होगा वो भी सेम ही होगा, बिकॉज इट इज 180 माइनस दोस टू एंगल्स, राइट। यहाँ पे A मेरा A एंड B वो P और Q से इक्वल है, राइट, तो C जो होगा वो मेरा 180 माइनस AB होगा और R जो होगा वो मेरा 180 माइनस P प्लस Q होगा और ये मेरा C मेरा 180 माइनस A प्लस B, तो वो सब्सिक्वेंटली तीसरा भी हो जाएगा। सो दो एंगल या फिर तीन एंगल, दो है तो तीन हो गए होंगे, राइट। सो दिस इज AA और AAA टेस्ट एंड द थर्ड वन इज SSS टेस्ट, यानी कि दो ट्रायंगल से मेरे ABC PQR, this is proportional to this, this is proportional to this and this is proportional to this। तो if AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR, तो ABC triangle ABC is similar to triangle PQR। तो तीन टेस्ट थी, वैसे चार थी बट जनरली तीन ही होती है, SAS, AA और AAA एंड द थर्ड वन इज SSS टेस्ट। तो दो ट्रायंगल्स हम वैसे भी बोलते हैं, स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं कि इन ए सिमिलर ट्रायंगल्स
करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये मेरा ए और ए टेस्ट हो गया. करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, वो मेरा एस टेस्ट हो गया. एंड द लास्ट वन इज एस टेस्ट, जहाँ पे दो साइड्स राइट वो मेरी प्रोपोर्शनल होती है एंड द एंगल इंस्क्राइब्ड इन दोस टू साइड्स राइट. यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये दोनों साइड्स और ये एंगल राइट, तो वो नहीं चलेगा. एंगल इंस्क्राइब्ड इन दोस टू साइड्स शुड बी इक्वल. सो दिस आर द 3 टेस्ट. तो ये हमारा था थोड़ा बहुत थियरी कि कैसे दो ट्रायंगल्स मतलब सिमिलरिटी क्या होती है. जब दो ट्रायंगल्स मेरे सिमिलर होते हैं तो क्या होता है साइड्स और एंगल के बारे में. एंड व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन what are the tests for two triangles to be similar and what are the corresponding angles and sides, right? Now we will solve some problems on it. In the given figure, triangle ABC is similar to triangle DEF और हमें साइड्स दिए कि AB दिया है, AC दिया है, DE दिया है, DF दिया है और पूछा है कि लेंथ ऑफ AB एंड DF. तो ये डायग्राम में सम्स की जरूरत डायग्राम की जरूरत वैसे है तो नहीं, बट स्टिल हम बना लेते हैं. A, B, C and D, E, F, राइट. तो यहाँ पे हमें नहीं पता है कि कौन सा ट्रायंगल बड़ा है कौन सा छोटा है, बिकॉज वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ x. तो हमने रैंडमली दो डायग्राम्स बनाए यहाँ पे A, B, C, D, E, F. अभी A, B, C इज सिमिलर टू D, E, F, राइट. ट्रायंगल A, B, C इज सिमिलर टू ट्रायंगल D, E, F, यानी A जो होगा वो मेरा D से इक्वल होगा, B जो होगा वो मेरा E से इक्वल होगा एंड C जो होगा वो मेरा F से इक्वल होगा. तो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होगी मेरी वो भी मेरी प्रोपोर्शनल होगी. तो ए बी ए सी राइट, मुझे ए बी में भी x है ए सी में भी x है और पूछा है कि ए बी और डी एफ क्या होगा. तो फर्स्ट राइटिंग ऑल द साइड्स, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ. नाउ ए बी क्या है मेरा x माइनस 0.5, डी ई मेरा 9 हो गया 9 सेंटीमीटर. बी सी यहाँ पे है ही नहीं, ए बी ए सी डी डी एफ. ई एफ भी नहीं है यहाँ पे. ए सी 1.5 इंटू एक्स एंड डी एफ इज 3x. तो इसकी हमें कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें पूछा है वो ए बी एंड डी एफ पूछा है राइट. तो ये पूरा इक्वेशन मेरा x के टर्म्स में हो गया. तो x माइनस 0.5 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1.5x अपॉन 3x. यहाँ पे आपको लिखना होगा कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, या तो फिर CSST से भी काम चल जाएगा. तो यहाँ पे x मेरे कट हो जाएंगे, तो इट विल बी x माइनस 0.5 अपॉन 9 equal to 1.5 upon 3. Now 1.5 into 2 is 3, so x minus 0.5 upon 9 equal to 1 upon 2. So 2x minus 1 equal to 9, so 2x equal to 10, x equal to 5. पूछा क्या है, फर्स्ट इज AB. तो AB is equal to x minus 0.5 सेंटीमीटर, तो 5 माइनस 0.5 यानी कि 4.5 सेंटीमीटर. एंड सेकेंड वन इज DF. DF इज 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 5 यानी कि 15 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे DF है 15 है मेरा राइट, एंड कंपेरिजन एंड DF मेरा 15 है और AC मेरा 1.5 इंटू 5 यानी कि 75, यानी कि DEF जो ट्रायंगल है वो मेरा बड़ा ट्रायंगल होगा, ABC है वो मेरा छोटा ट्रायंगल होगा. वो पूछा नहीं है बट जस्ट सेइंग. तो इस तरीके से हम AB एंड DF फाइंड करेंगे. नाउ इन ट्रेपेजियम ABCD, साइड AB इज पैरेलल टू साइड DC. So ABCD is a trapezium and the diagonals AC and BD intersect each other at point P. So the basic property of trapezium is कि
उसकी अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल होती है, और वो पैरेलल होती है, यानी कि ए बी, यहाँ पे ए बी जो होगा वो मेरा डी सी से पैरेलल होगा। ए बी इज पैरेलल टू डी सी। AB is parallel to DC. Now the second part, और पूछा गया है कि APB, we have to prove triangle APB similar to triangle CPD, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, हमें ये दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करना है कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। हमारे पास 3 टेस्ट है, SAS, SSS और AA। तो यहाँ पे हमें दो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट P पे, वो दिया है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट साइड्स के बारे में कुछ नहीं पता। एंड AB इज पैरेलल टू DC। सो यहाँ पे ये जो एंगल होगा मेरा, ये एंगल मेरा ये एंगल से इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली ये जो एंगल होगा वो मेरा ये एंगल से इक्वल होगा। इन दिस एंगल BD विल बी ट्रांसवर्सल, ये एंगल में AC मेरा ट्रांसवर्सल होगा। सो वी कैन से PAB इज इक्वल टू PCD एंड PDC इक्वल टू PBA। अपार्ट फ्रॉम दिस ये दोनों एंगल भी मेरे इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे सोल्यूशन प्रूफ, सॉरी, quadrilateral ABCD is trapezium first, so therefore AB is parallel to DC, so therefore angle ABP is equal to angle PDC and angle PAB is equal to angle PCD. Reason, alternate angles. Second part, in triangle APB and triangle CPD, angle PAB is equal to angle PCD and angle ABP is equal to angle PDC from 1. तो अभी हमें important part है यहाँ पे। Now we have to name these two triangles, right? तो first I will write APB as a APB similar triangle. Angle A is equal to angle C, right? C. Angle P is equal to angle P because vertically opposite angles, and angle B is equal to angle D. तो angle APB is similar to triangle CPD by AA test. यहाँ पे जो हमें नाम दिया था APB और CPD वो सेम ही निकला, राइट? तो it was easy sum. So APB is similar to triangle CPD. Now in the given figure, DE is parallel to BC. जैसे कि सम में दिया है, DE is parallel to BC. AE is 15, EC is 9, NC is 6 and BN is 24. तो पूछा है कि राइट ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो कितने ट्रायंगल्स है पहले वो देख लेते हैं इस पूरे डायग्राम में। सो ट्रायंगल फर्स्ट ABC बड़ा वाला, उसके बाद ADE, उसके बाद ट्रायंगल ADM, ट्रायंगल ABN, फिर ट्रायंगल AME एंड ट्रायंगल ANC। तो यहाँ पे हमें सिमिलर लग रहे लुक से हमने उसको क्लब किया, राइट? तो ये सिर्फ ट्रायंगल्स है, ये सिमिलर हमने प्रूफ नहीं किया अब तक। टोटल 6 ट्रायंगल्स है पूरे के पूरे ये डायग्राम में।
डायग्राम में 6 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज 6, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर जो बनेगी वो मेरी 3 बनेगी, राइट, बिकॉज 2 ट्राइंगल बन के एक पेयर बनाते हैं। तो पहले कौन से एंगल्स मेरे इक्वल होंगे, तो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, सो लाइन ए बी विल एक्ट एज ए ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल जो होगा वो मेरा ये एंगल से इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली ये एंगल होगा वो मेरा ये एंगल से इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये एंगल जो होगा वो मेरा ये एंगल से इक्वल होगा, और ये तो ये सारे मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, राइट। तो ए डी एम, राइट, ए डी एम और ए बी एन में ए मेरा कॉमन एंगल हो गया, राइट। फर्स्ट वी आर डूइंग इन ट्राइंगल ए बी, फर्स्ट ए बी सी ले लेते, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल। उसके बाद एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, corresponding angles। So therefore triangle ABC is similar to triangle A is equal to A, D is equal to B, right, E। So ABC और AD मेरे इक्वल हो गए। सिमिलरली मैं यहाँ पे ABN is similar to triangle ADM कर सकता हूँ, और ट्राइंगल AEM सिमिलर टू ट्राइंगल ACN कर सकता हूँ बाय AA टेस्ट। यू कैन डू दिस सम इन होमवर्क, राइट, इट इज होमवर्क। तो दिस तरीके से यहाँ पे मेरी कितनी पेयर बनेगी, देट विल बी 3 पेयर। सो फॉर दिस वीडियो दिस इज द एंड, दिस वाज क्लास 1। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा क्लास 2, उसमें हम एक्सरसाइज 13A करेंगे, राइट। सो स्टे कनेक्टेड विथ अस, उसमें हम 13A करेंगे, उसके बाद बीपीटी थ्योरम वगैरह वगैरह। सो थैंक यू।